First time I'm entering into Lucknow, and you have kept me in front of Gulshan sir. So the main reason I felt very comfortable is because of the cast and crew. So each and everyone was so sweet that even though I said some bullshit, they were correcting me every single time, and they made me feel I was at home. Because any actor जब पहला दिन वर्क करता है तो the first thing he wants to be is as comfortable as possible. So that they have done. And being a child artist and an actor myself, so I you every day you need to prove yourself, keep on proving yourself, and need to improve yourself. So I felt really happy that it was a very 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 nice role that Abhishek sir has kept in front of us. And each and every step of the way, as you have said, songs एक से बढ़कर एक different types of songs है इस movie में. So there were situations where I had to change my character. As you can see, the pehle he was very innocent and stuff, but again there is a slight change in the character arc as well. So each and every scene was very challenging, and at the same time, as I said, entire cast and crew were very helpful, so I felt at home, at ease. My other question is again space with him. Actually, uh, this girl over here is a very 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 huge fan. Who not is a fan of Shaktiman? So each and everybody, as a child, as a as a kid, everybody used to love Shaktiman, and he is our childhood hero. And this girl over here was jumping with joy when Crying also. and she should explain. She explains it much better. Okay, I'm very excited to talk. जब मुकेश खन्ना जी आए और मुझे गाना शूट करना था, टाइम था बहुत कम। ये महारानी जी, हमारी अप्सरा रानी महारानी जी 2 घंटे बैठ के वहाँ पर स्टेज के बाहर रोती रही, और मैं कहा माता जी चुप हो जाओ, आगे जाके काम भी करना है। तो बोले नहीं, मैं नहीं चुप होंगी, अब इनसे सुनिए। So actually मुकेश खन्ना सर मेरे लिए वो एक सुपर हीरो है, मेरे लिए वो इंसान है ही नहीं। So जब मैंने उनको देखा मुझे लग रहा था शक्तिमान मेरे सामने है, वो उड़ जाएंगे अभी। Like I couldn't believe that he is a human. I've grown up. I think more than my parents, I've taken him seriously as a kid. So for me to share a stage with him and to believe that he's a human, it took me some time to calm down and be normal, honestly. And I think I was very lucky that day. I felt like okay, I deserve to be in the film industry. When I shared a stage with him, I think my worth for like my confidence became so high and for myself, and it was a great experience. मैं तो मेरे तो tears ही नहीं रुक रहे हैं बीच में. I'm crying, I'm jumping. I was so funny that day. But I think I was calling my brother. He's also a huge fan. So I remember watching Shaktiman when I don't even remember anything. Like I was so small. My brother used to explain me everything कि क्या चल, मुझे समझ में भी नहीं आता था. तब से हम शक्तिमान. So मैंने सोचा नहीं था कि उनके साथ इस जन्म में काम करने मिलेगा. But I've been very lucky and I'm a huge fan of him. Even now if I see Shaktiman, I'll cry. So yeah, it was a great experience. And पप्पू सर ने जो देशभक्ति वाला गाना किया, I think मेरे डैड का वो फेवरेट सॉन्ग है. मेरे डैड Air Force, he's a retired Air Force officer, and for him it was a very proud moment that I did a patriotic song, and I'm very happy to do that song with Mukesh Khanna. So I think it's excellent having him, and जो generation है, I feel the patriotism even more with his presence, I'm sure. So yeah, it was great. Apsara and Manas both. For me, anytime I love Kamal Hassan sir, because as an actor, director, producer, he's a master of all crafts. So I love Kamal Hassan sir as an actor, and I'm a huge fan of Pawan Kalyan sir. So जब हम inspiration लेते हैं, like we take inspiration from many actors, because of their roles, maybe of their roles or of their persona, of their attitude. So there are many stars like that. Amitabh Bachchan sir has been a great inspiration for me for a very long time because of the way he carries himself. And we have heard stories about saying that he being a misfit
not proper actor or not a nice voice or something. So people used to treat him not as an actor, but he has proven, like he has uh, told everybody that there is no, sir was saying there is no PhD of acting or something. So there is nothing called a book or a dictionary or a way of acting, a way of presenting themselves. So against all odds, some people have grown and become superstars. So all those people have been such a huge inspiration for each and every upcoming actor for, like me. So yeah, that's it. अप्सरा, So I believe whenever I watch a movie or a series or something, I believe every actor has something that we can learn from them. So anything that I watch, I try to learn from them because we are just new, we are starting, and there's a, as he said, there's so much. There's an ocean, and if we get few drops out of the ocean, it'll be great. So I try to learn from anything that I watch, any movie that I like. I try to learn from actors because I think every actor has their own way of understanding a character, their own layers of emotion. So I try to learn from like all of them. You know, everybody is great, and we see so many good movies now. So I can't take like one person's name. There's so many of them. So yeah, I try to learn from everyone. I think we are at learning stage now. So yeah. मेरा सवाल Passion for cinema is common everywhere. So wherever we make films, we do it with passion and we do it for the love of art. So movies or there's no, like, you know, language barrier and all. There is never been a language barrier because Hindi ke stars bhi, they used to come and work like previously. So now also there are, like, because movie has become a pan-India film. So any film which is doing good is being released in multiple languages and such. So the similarities is we love making movies and we love to do in films. So let it be any language, we would love to do in movies. That's it. अप्सरा जी would like to add something and also रामू सर से कुछ सजेशन या टिप्स लेके आप वहाँ से आई हैं या यहाँ पे कुछ बात हुई आप Of course, रामू सर के साथ काम करने में बहुत कुछ सीखने मिला. And I did a very different sort of a movie. Genre, Dangerous was a very different genre movie, and this is a very different genre. I've been lucky to get a different movie like this. And yes, South movies and Hindi movies, I don't think there is any difference. I think people are working from their heart. People are very passionate. The only difference is the language, and language is just expression, and we can, we can work on that. So I don't think there's any difference as such. People, while working in cinemas, are very passionate. So I don't think language makes any difference. Yeah. But of course, I speak Hindi. I don't speak Telugu. I'm learning. I'll do like 30%. So for me, Hindi is much easier. But I'm also working on the Telugu side. I'm trying to learn that. So I want to focus on that as well. So yeah. Yeah. चड्ढा साहब you have been in the industry for a long time now क्या changes देख रहे हैं आप पहला रीज़न तो ये है कि हम लोग जब ये फिल्म बनाने के लिए शुरू करने के लिए बैठे तैयार कर रहे थे तो काफ़ी सारे हमने लव स्टोरी है ये फिल्म हमारी तो इसके लिए हमने काफ़ी टाइटल रजिस्टर्ड कराने की कोशिश की लेकिन कोई टाइटल मिला नहीं तो एक दिन मैं और मेरे प्रोड्यूसर प्रेमचंद सिंह हम लोग बैठे लस्सी पी रहे थे कुल्हड़ में तो इन्होंने बोला इस फिल्म का नाम कुल्हड़ क्यों ना रख दिया जाए तो मैंने कहा नहीं इसका नाम रखते हैं प्यारा कुल्हड़ क्योंकि हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी के अंदर अक्सर क्या होता है कॉलेजेस में जो कोई लड़का सीधा साधा या इस टाइप का दिखाई देता है तो उसको लड़कियां बोलती हैं साला कुल्हड़ है कुल्हड़ तो हमारी हीरोइन बोलती है तुम्हारे लिए कुल्हड़ होगा हमारा तो प्यारा कुल्हड़ है तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसका टाइटल रखा प्यारा कुल्हड़ दरअसल 1 महीने तक हम लोग रोज़ 10 टाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए भेजते रहे लेकिन जब भी आता था तो ये आता था ऑल टाइटल इज रजिस्टर्ड योर टाइटल इज कैंसलेड तो मैं एक दिन टाइटल 10 और भेजा तो एक कुल्हड़ में लस्सी में हम लोग पी रहे थे हम और डायरेक्टर साहब तो मेरे मैसेज आया उसी पीते समय तो उसमें आया था जो आपने 10 टाइटल भेजे थे वो कैंसिल हो गए तो मैंने गुस्से में कहा सर एक कुल्हड़ तो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो ये 3 सेकंड बाद बोले प्यारा कुल्हड़ मतलब इसका इमेजिंग इसकी कभी कल्पना नहीं की गई थी बस उसी समय हम लोगों ने उसको भेजा उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई बोले ये कुल्हड़ भर इश्क रजिस्टर्ड है फिर मुंबई आकर के सर ने लोगों से बात की और ये प्यारा कुल्हड़ रजिस्टर्ड हो गई और सर ने कहानी लिखी और हम लोगों ने शूटिंग शुरू की
और आज बन के कंप्लीट हो गया आपके सामने। अभी 26 मई को रिलीज हो रही है देश के सारे सिनेमाघरों में, और ये एक अपोजिट लव स्टोरी है जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। जैसा सर का टाइटल है कि पोती और बाबा एक साथ बैठ के देखें, और बहुत ही अच्छा है। इसमें हमारे साथ साउथ के सुपरस्टार मानस जी ने काम किया है, अप्सरा रानी ने काम किया है, और हमारे बैटमैन नाम से जाने वाले गुलशन ग्रोवर जी ने काम किया है, और हमारे शक्तिमान मुकेश खन्ना जी ने काम किया है, और बहुत सारे लोग हमारे प्रोडक्शन के लोग जुड़े रहे हैं, जिसमें सर आपको बताएंगे। और वो यूनिट के कौन कौन से लोग हैं, जैसे हमारे एसोसिएट सूरज कुमार, ईपी वीरेंद्र कुमार, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। सर, बड़ी कास्ट को एक साथ लेकर चलना, एक फिल्म बनाना आसान होता है? क्योंकि हम तो देख लेते कि बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, लेकिन फिर बाद में बिहाइंड द कैमरा क्या क्या चीज़ें चलती हैं? नहीं, जिस तरह आपने पूछा कि बड़े कलाकारों को लेकर फिल्म बनाना आसान है या मुश्किल, तो मेरा कहना सबसे बड़ा ये है कि मैंने काफ़ी बड़े बड़े, ये सब समझ लीजिए कि महानायक जी के साथ भी मैंने 5 फिल्में बनाई हैं। तो बड़े कलाकारों के साथ काम करना ज़्यादा आसान है बशर्ते नए कलाकारों के साथ काम करने के, क्योंकि वो हर चीज़ को समझते हैं, और वो मैक्सिमम मैंने ये देखा कि वो डायरेक्टर्स के एक्टर होते हैं, और डायरेक्टर्स के एक्टर होने की वजह से हर डायरेक्टर को ये सहूलियत होती है उस कलाकार से काम करवाने में। जैसे अमिताभ जी हैं, उन्होंने कभी आज तक किसी भी फिल्म के अंदर मुझे ये नहीं कहा कि ये मैं नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि ये ऐसा करूँ तो चलेगा, कभी नहीं कहा। तो जो बड़े कलाकार हैं, जो महान कलाकार हैं, जो सारे बड़े बड़े कलाकार हैं, कभी वो इंटरफेयर करते ही नहीं है डायरेक्टर को, क्योंकि उनको मालूम है कि डायरेक्टर का विज़न जो है बिल्कुल क्लियर होता है, और वो फिल्म को किस ढंग से बना रहा है ये उसको मालूम है, डायरेक्टर को, ना कि कलाकार को। तो इसलिए वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। मेरा तजुर्बा यही है, जैसे मैंने अमिताभ जी के साथ किया, जया बच्चन जी के साथ किया, हेमा मालिनी जी के साथ की फिल्म, नगमा के साथ फिल्म की, भूमिका चावला, अरुणा ईरानी जी, काफ़ी बड़े बड़े कलाकारों के साथ मैंने काम किया। किसी ने कभी कोई चीज़ रोकी नहीं, टोकी नहीं। नए कलाकारों में ज़रूर कुछ नखरे होते हैं, और वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको स्टार बनना है, और ये बने हुए हैं, ये भी हो सकता है। तो एक जनरेशन गैप भी आप मान सकते हैं, लेकिन बड़े कलाकारों के साथ काम करना मेरी नज़र में ज़्यादा आसान है। और एक चीज़ मैंने ये देखा, ये जब फिल्म शूट हो रही थी तो ये इत्तेफाक है ये कि 26 मई को इसका मुहूर्त हुआ था लखनऊ में, और बीच में हम लोगों ने ट्राई किया कि बीच में रिलीज़ कर दिया जाए फरवरी, मार्च, अप्रैल में, लेकिन देखिए इत्तेफाक कैसा है कि वो शुक्रवार ही पड़ा जो 26 मई 2023 को फिल्म रिलीज हो रही है। और वहाँ पे जो हम लोगों ने शूट किया, मेरी यूनिट ने, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, चाहे हमारे आर्टिस्ट हों या मेरी यूनिट के मेंबर, 50 डिग्री हीट में हम लोगों ने इस फिल्म को शूट किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, और सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, और मेरे हिसाब से फिल्म हमारी जो बनी है, ये 10-15 साल बाद ऐसी फिल्म बनी है जो साफ़ सुथरी और अच्छी, सभी के देखने लायक है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि 50 डिग्री टेम्परेचर में शूट की हुई फिल्म आपको ऐसा लगेगा जैसे हिल स्टेशन में शूट की हुई है। इतनी खूबसूरत उसकी लोकेशन, उसकी परफॉर्मेंस वगैरह है सारी चीज़ें। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर उसमें इंटरेस्ट लेके देखें पिक्चर, और पिक्चर की तारीफ़ करें, पिक्चर को आगे बढ़ाएं, थिएटर में जाएं, ज़रूर देखें। और इसमें हमारे जो बड़े आर्टिस्ट रहे गुलशन ग्रोवर जी, इतनी धूप में उन्होंने कभी मना नहीं किया। जैसे उनको टाइम पे बताया गया कि आपको 11 बजे पहुंचना है या 12 बजे, 1 बजे, कभी भी नहीं। जैसे हम लोग कहते थे कि एसी से निकलने के बाद में वेंटी वैन से, लेकिन उन्होंने उस 50 डिग्री में शूट किया। यही हाल हमारा अप्सरा रानी का भी था, और उन्होंने भी कड़कती धूप में, जो कि जब रोड का एक सीन होता है जो लगभग दिन के 12 बजे 50 डिग्री में है, तो उसमें मानस है, अप्सरा है, मेरी पूरी यूनिट के लोग, डायरेक्टर साहब हैं। मैं उस दिन बता रहा हूँ इतनी हीट थी कि मैं वैनिटी से बाहर नहीं निकला, और वो शूट होकर गया। मैंने जो इमेजिन था कि ये लोग कैसे शूट करके आ गए। तो मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि जिन लोगों ने मेरी फिल्म में बड़ा सहयोग किया, और सारा श्रेय हमारे अभिषेक चड्ढा जी को जाता है, और आपको बताएंगे कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। जैसे मेरे कलाकारों में मानस नागलवल्ली, ये साउथ के हैं, हैदराबाद से हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की। अप्सरा रानी बहुत मेहनत की। गुलशन ग्रोवर के बारे में तो खैर दुनिया जानती है कि बहुत मेहनती इंसान है और बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने भी बहुत मेहनत से काम किया। सभी कलाकारों ने, उस यूनिट के तकरीबन सभी लोगों ने
मेरे डीओपी हों या कोई भी हो, सब ने इसमें बहुत मेहनत से काम किया। और मेहनत से काम करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है हमारे निर्माता प्रेमचंद जी को, क्योंकि इन्होंने अगर यूनिट में कोई ज़रा सी चीज़ की कमी होने नहीं दी, हर चीज़ पहले से ला के रखी, हर चीज़। तो सर जब तक सहयोग बराबर नहीं होगा और निर्माता जब तक पूरी तरह से प्रॉपर नहीं जुड़ेगा, तो यूनिट कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी छोटी हो, आप काम नहीं कर सकते, पिक्चर नहीं बना सकते। तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है प्रोड्यूसर का, निर्माता का। तो जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया, बहुत अच्छा काम किया, और हर चीज़, किसी को एक सुई से लेकर तलवार तक की कमी नहीं आने दी। ये चीज़ बहुत अच्छी थी इनकी। और सभी कलाकार और सारे टेक्नीशियन हमारे बड़े खुशी खुशी काम किए। इस फिल्म का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। इस फिल्म के गाने मेलोडियस हैं। मैंने इस फिल्म में जो गाने रखे हैं वो आज के टच के हिसाब से पुराने टच में भी रखे हैं। इस गाने के इस फिल्म में मेलोडियस सॉन्ग्स और कुछ लाउड सॉन्ग्स भी हैं और बहुत अच्छे गाने हैं। गाने विष्णु नारायण ने म्यूज़िक दिया है। तो विष्णु नारायण जी ने जो म्यूज़िक दिया, बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया। गाने लिखने वाले सब अच्छे हैं। इसमें गानों में सिंगर्स भी हमारे बहुत अच्छे हैं। ऋचा शर्मा हैं, सारिका सिंह हैं, दिलेर मेहंदी जी हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर्स भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि अभी वो लोग आएँ शायद, तो आप लोग उनसे भी बातचीत कीजिए। और एक गाना हमको लगता है कि 15-20 साल बाद जो देशभक्ति पर बना हुआ है, जिसको दिलेर मेहंदी जी ने गाया है और पर्दे पर मुकेश खन्ना जी ने फिल्माया, भारत माता की जय, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और ये देश भर में बजेगा। ये 10-15 साल बाद ऐसा देशभक्ति पर गाना आया है और दिलेर मेहंदी जी ने गाया भी बहुत खूबसूरती से है और वो फिल्माया भी गया बहुत खूबसूरती से मुकेश खन्ना जी के ऊपर। और कोरियोग्राफर उसके हैं पप्पू खन्ना जी, जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अभी सब मीडिया बंधुओं को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हमारे जो सब कलाकार, सारे टेक्नीशियन, मैं सबका आभारी हूँ। और ख़ास तौर से मेरे निर्माता प्रोड्यूसर प्रेमचंद जी का काफ़ी आभारी हूँ। इन्होंने पूरी यूनिट को पूरा साथ दिया और आप लोग हमको फिल्म को हमारी बढ़ाने के लिए जो साथ दे रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इसको देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, क्योंकि एक अच्छी साफ़ सुथरी फिल्म है जिससे लोगों का मन बदले और आगे चलकर उस पर काम करने की कोशिश, और प्रोड्यूसर का भी हौसला बढ़े, जिससे यूनिट भी चलता रहे, सारे लोगों का काम चलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू।